Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 14.2. So we were on chapter number 14 of class 8 and the name of the chapter is factorization. Alright, and we have done our exercise 14.1 and 14.2 we have done question number 1 and question number 2 till part number 5. Yes. So in this video, we will be starting with part number 6 of question number 2. Alright. And the sixth part of question number 2 is nine x square y square minus 16. So yes, children, question number 2 of exercise 14.2 says factorize. We have to factorize these expression, and we know that we were using the identities to factorize, right? Identity a square minus a minus b whole square, a plus b whole square and a square minus b square. So let's see in this question हम कौन सी identity apply करते हैं. We have 9x square y square and 16. And we know that 9 is the square of 3 and 16 is the square of 4. So we can write this as 3xy whole square minus 4 whole square. ठीक है, अब x square y square तो हमारे पास है ही and 9 को भी हमने 3 square लिख दिया. So 3xy whole square minus 4 whole square. So it means this is a, 4 is b. So a square minus b square equals to a plus b and a minus b. अब हमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. So a plus b means 3xy plus 4 3xy minus 4. This is the answer. We cannot further solve this. तो यही हमारा आंसर है. 3xy plus 4 and 3xy minus 4 is the answer, right? So children, this was the sixth part of question number 2. In this part we applied the identity a square minus b square which gives us a plus b and a minus b. इसको हमने a square minus b square की फॉर्म में पहले लिखा and then we applied a plus b, a minus b. Alright, so this was our sixth part. Now let's proceed to part number 7. Now children, part number 7 of question number 2 says x square minus 2xy plus y square minus z square. So this is our part number 7. Now अब ये z square तो एक extra term given है, but this is a square minus 2ab plus b square. a x है, b y है, so minus 2ab in between. See, this is a square, this is b square and this would be 2ab, that too minus का. It means we will be getting a minus b whole square. देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. This is x square minus 2 into x into y plus y square minus z square as it is. So what I did, मैंने इसको expand किया a square minus 2ab plus b square में, and we know that a minus b whole square equals to
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी तो हमें पता ही है. सो इट मीन्स दिस वुड बी x माइनस y होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. वी कैन नॉट फॉरगेट माइनस z स्क्वायर चिल्ड्रन. जो एक्स्ट्रा टर्म होती है वो हमेशा ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होती रहती है जब तक कि वो इक्वेट नहीं होगी. सो दिस इज नाउ x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. नाउ व्हाट आई कैन ऑब्जर्व हियर इज कि यहाँ पे अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है. वेयर दिस इज a and this is b. So we can apply a square minus b square equals to a plus b, a minus b, right? So अब हमें ये second identity apply कर रहे हैं and what we'll get? a is x minus y. So x minus y plus z and a minus z. So x minus y plus z and x minus y minus z is the answer of our part number 7. Let's see हमने इसमें किया क्या. See, our question was x square minus 2xy plus y square minus z square. Okay, and we know that इसमें एक identity apply हो रही है which is a square minus 2ab plus b square which is a minus b whole square. So हम वो identity apply कर देंगे and we'll get x minus y होल स्क्वायर. अब माइनस जेड स्क्वायर तो अभी भी एज इट इज ही आएगा. नाउ हियर वी कैन सी दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर एक्स माइनस वाई इज ए एंड जेड इज बी. सो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इट मीन्स दिस इज ए, तो ए प्लस जेड एंड ए minus z. So this is our final answer. Okay, so this was our part number 7 of question number 2. Now let's proceed to the last part of question number 2, that is part number 8. Now we are starting with the last part of question number 2. So part number 8. (25) a square minus 4b square plus 28 bc minus 49 c square. So now we have this expression and now we have to factorize this expression. First let's observe. See, we have 25a square. We know that 25 is the square of 5. So 5a whole square है ये. This is 2b whole square and this is 7c whole square. And अभी यहाँ पे जो हमारे पास एक number है that have bc in it, b and c. So whenever we use identity children, जो हमारे पास a square and b square में होता है वही 2ab में भी होता है, राइट. सो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे bc है. इट मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी b स्क्वायर 4 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर में. इट मीन्स जो एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे वो है 25
ए स्क्वायर। इसका अभी हम इसके साथ हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड इन तीनों में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस, देखो अब कौन सी करेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। सी वी हैव पॉजिटिव साइन हेयर बट ये 4b स्क्वायर माइनस में है एंड माइनस 49c स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे a एंड c माइनस में है। इट मीन्स जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो होती है वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। बस उसमें हमारे पास ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं एंड अगर हम दूसरी आइडेंटिटी भी लिखें विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसमें भी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बट यहाँ पे ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर नेगेटिव है, ओके। सो what we can do is हमारे पास ऑपोजिट साइंस गिवन है, ये वाला साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव गिवन है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव गिवन है एंड कमिंग टू दिस ये पॉजिटिव होगा तो भी ठीक है, नेगेटिव होगा तो भी ठीक है, बिकॉज दोनों की आइडेंटिटी है हमारे पास, राइट। सो इट मीन्स हम एक माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाएगा एंड इट मीन्स हम ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इसमें, राइट। सो स्टार्टिंग विथ this would be 25a square, 25a square as it is, एक माइनस का साइन ले लेंगे हम अभी यहाँ पे कॉमन, ठीक है। सो उससे क्या होगा माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर प्लस 28bc हो जाएगा माइनस 28bc एंड माइनस 49c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। हमने एक नेगेटिव साइन कॉमन लिया एंड तीनों टर्म का साइन चेंज कर दिया। नाउ वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी इन दिस पार्ट चिल्ड्रन, दिस वुड बी 25a स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर एंड 7c होल स्क्वायर माइनस 2b 7c। आई होप दिस इज क्लियर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी हमने। सो व्हाट वील गेट, दिस विल बी 25a स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर 2b माइनस 7c होल स्क्वायर बिकॉज 2b इज a एंड 7c इज b, सो a माइनस b होल स्क्वायर लगेगा बिकॉज बीच में नेगेटिव साइन है, सो दिस इज 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ठीक है। अभी अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सी दिस कैन बी रिटन एज 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई, दिस इज a, दिस इज b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b, a माइनस b, सो सो व्हाट डज दिस मीन, इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस b मीन्स 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड 5a माइनस 2b माइनस 7c, राइट। सो दिस वुड बी 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड 5a minus 2b plus 7c. This is our final answer.
ओके, सो हमने यहाँ पे लीव क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन था, तो इट मीन्स बोथ द साइन ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी चेंज्ड. वो चेंज करके नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, यस, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो बेसिकली व्हाट वी डिड चिल्ड्रन, यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, सो वो आइडेंटिटी अप्लाई करी हमने एंड इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते रहे टिल हियर. अब यहाँ पे जब हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज a प्लस बी a माइनस बी. सो वही हमने अप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी, बट जब a माइनस बी करेंगे सो b वाले जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज होंगे. सो वो हमने चेंज किए एंड देन आवर आंसर कम्स आउट टू बी 5a plus 2b minus 7c, 5a minus 2b plus 7c. Okay, so this was our 8th part of question number 2, and with this we have completed all the parts of our question number 2 also. So now children, question number 1 is complete, question number 2 is also complete. So now we will be starting with question number 3 in our next video. All right. Okay, so stay tuned for my next video. In that video, we'll be starting with question number 3 of exercise 14.2. And if you still have any doubt, any confusion, any query, if still there is any part जो आपसे अभी भी solve नहीं हो रहा, so you can write in our comment section below. I'll surely make another video for that part or that question again. Okay, so stay tuned for my next video. I'm signing up here, and don't forget to like and share this one. Thank you.